हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बेटा, we have done up to question number first, second, third. We have completed that day. Now I am starting from question number 4, the 4, 5th. ठीक है, just see the question number 4. One upon x square x to the power 4 plus 1 whole to the power 3 upon 4. देखिए, we have to integrate this term. For integrating, it is not in the standard form. ठीक है, just try to make in the standard form. We can apply the formula. देखिए, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 है, तो इसमें जो पावर है यहाँ पर फ्रैक्शन में गिवन है ना. जो फॉर्मूले में हमारे वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले हैं मोस्टली फॉर्मूले, या 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म होती तो हम log x यूज कर सकते थे इंटीग्रेशन में. तो यहाँ पर जब भी कभी आप पावर फ्रैक्शन में हो तो जस्ट ट्राई टू टेक कॉमन as much power is maximum power of x we can take common. Here you can take x to the power 4. If we take common x to the power 4, so you have to multiply by 3 upon 4 also, because whole to the power is 3 upon 4. After taking common x to the power 4, we will get 1 upon x to the power 4, and dx will remain as it is. Now you can cancel this 4 to 4. Now it becomes 1 upon x to the power 5, or it will be 1 plus x to the power, you can write minus 4 also, dx. Now it is also not in the standard form, but it can be reduced to standard form by assuming that 1 plus x to the power minus 4 equal to t. If we assume equal to t, so if we differentiate both sides, so minus 4 x to the power minus 5 dx is equal to dt. यानी कि x to the power minus 4 is available here. We can write x to the power minus 4 या 1 upon x to the power 5 dx is equal to minus 1 upon 4 dt. Minus 1 upon 4 dt. So it becomes 1 upon t. We can write in place of 1 plus x to the power minus 4 equal to t. And 1 upon x to the power 5 dx is equal to minus 1 upon 4 dt. So minus 1 upon 4 you can write in the beginning because it is a constant term. Now it is in standard form. So what will be the integration of 1 upon t will be log t, minus 1 upon 4 log t. In place of t, you can write 1 plus x to the power minus 4. You can leave here only, or you can write in the minus 1 upon 4 log, if 1 upon x to the power 4, x to the power 4 you can take common, so 1 plus x to the power 4 plus c. If you can reduce this minus sign also, so it will become 1 upon 4 log x to the power 4 divided by 1 plus x to the power 4 plus c. So either you can leave here also, or here or here. Okay. So what we have done here in this question, we have taken the maximum power common. After getting common, whatever we get, we let equal to t. After differentiating, we get the standard form. So after getting standard form, we can integrate. Okay. Now this question is completed. Now we take the next question. I am just
Copy me this one. देखो यहाँ पर हमने मैक्सिमम पावर x टू द पावर 4 थी ना, उसको कॉमन लिया, क्योंकि होल टू द पावर 3/4 है, तो वी हैव टू टेक द होल पावर ऑफ दिस टर्म आल्सो. That's why we get x to the power 3, then it becomes x to the power 5. After that, we have question number 5. 1 upon x to the power 1 upon 2 plus 1 upon x to the power 1 upon 3. तो दोनों ही पावर ऐसी फॉर्म में है ये, we cannot take right directly, we cannot apply directly any formula. So for that, you just take the LCM of this fraction 1 upon 2 or 1 upon 3, that will be 1 upon 6. You let x to the power 1 upon 6 is equal to t. Power 6. If we put here dx is equal to 6 t to the power 5 dt. 1 upon x to the power 1 upon 2. In place of x, you just write t to the power 6, t to the power 6 whole to the power 1 upon 2 plus t to the power 6 whole to the power 1 upon 3. In place of dx, we can write 6 into t to the power 5 dt. Now it is a question t to the power 3 plus t to the power 2. Here we have t to the power 5 and 6 we have taken here. Now you can divide by a t to the power 2, then you will get here t to the power 2 we can take common, and dividing we get t to the power 3, and here we will get t plus 1. It is a simplest form. But whenever we have the degree of numerator greater than the denominator, so what we do? We divide by the denominator. We try to reduce the power of numerator. We are dividing t to the power t by t plus 1. If we divide, so it becomes t square t cube plus t square. We can subtract, this term is cancelled, minus t square. Now we will try to eliminate this term by multiplying by minus t, then it becomes minus t square and minus t. We also changing the sign. Okay. So we get here only t here. So we can also have to eliminate this term also by multiplying 1. So t plus 1, we get 1 only, minus 1. So after that we get 6 into t square minus t plus 1 minus 1 upon t plus 1 dt. Now we will integrate. Now all the terms in our standard form, we can apply the formula of integration. So here you will get 6 into t to the power 3 divided by 3 plus minus t square upon 2 plus t
and we have to multiply by 6 this term also, so minus 6 upon log t plus 1 plus c. Now the integration is completed. Now you put the value of t. In place of t, you have to put x to the power 1 upon 6. By putting this value, you will get the answer. Just remember that we have assumed t, but we will not leave the answer in form of t. So you have to give the answer in term of x. The variable we cannot change. After changing, we have to give the answer in that term. Initially, they have given in variable x. So you have to put the value of t is equal to x to the power 1 upon 6. That will be your answer. तो इन दिस क्वेश्चन का बस मेन चीज ये थी कि आपको जो है क्या एज्यूम करें हम ताकि जो है हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. वेन एवर यू गेट द फ्रैक्शन टर्म, जस्ट ट्राई टू गेट फ्रैक्शन रिड्यूस. यहाँ हमने ऐसे ही टर्म को लेट किया x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6 को हमने लेट किया. क्यों लेट किया? क्योंकि हम x इक्वल टू टी दी पावर टी 6 लेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं आ रही टर्म. ठीक है, जो भी टर्म आई अब हमने इसको इंटीग्रेट करना था, फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया. उसके बाद हमने डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद जो हम ठीक है जो क्वेश्चन आता है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में एलजेब्रिक फॉर्म में x टू द पावर n हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और 1 अपॉन x की स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो हमने इसको फिर इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. देखो ये क्वेश्चन में पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है. 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx. इसमें हमने क्या किया है, ये आपकी जो भी टर्म दी हुई है f, इसको आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं. आप क्या करोगे, 5x को लेट करोगे, इट इज इक्वल टू a इंटू a अपॉन, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9. पार्शियल फ्रैक्शन यू हैव रिमेंबर a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx, क्योंकि ये आपकी डिग्री 2 है तो इसको आप क्या एज्यूम करोगे, bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9. ठीक है, यू आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a b c then you will get the standard form, then you can integrate. So this type of question we have done earlier, so there no need to explain again. Now I am taking the next question. 7 sin x upon sin x minus a. Sin x upon sin x minus a. तो यहाँ पर sin x आ रहा है, यहाँ पर sin x minus a आ रहा है. तो इसको हम जो है ना, इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करते हैं, हमने क्या काम किया, इसमें x माइनस a लिख दिया और प्लस a लिख दिया. क्योंकि हम किसी भी टर्म में इक्वल चीज ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना. द वैल्यू विल रिमेन सेम. वी आर सब्ट्रैक्टिंग माइनस a एंड एडिंग प्लस a. व्हाई वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द सेम टर्म x minus a in denominator into dx. Now we can apply the formula of sin a plus b या sin x plus y, जो भी आपने याद किया हो. What will happen, sin x cos a plus cos x sin a.
ठीक है, यहाँ पर हमने डिवाइड करना है, अलग अलग हमें डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर रहे हैं हम साइन एक्स माइनस ए से, इसको भी हमने साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करने के बाद ये देखो ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, अब कॉस है, कॉस से तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर क्या बचा आपका, सिर्फ वन बचा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स हो गया। ये क्या हो गया, कॉट एक्स माइनस ए, कॉट एक्स माइनस ए का क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो एक्स की जगह एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए आ गया। साइन ए क्या है, साइन ए तो आपका कोफिशिएंट है, इसका कांस्टेंट टर्म है, प्लस सी, बस ये आपका इंटीग्रेशन पूरा हो गया। हमने क्या इसमें ट्रिक यूज की, हमने माइनस ए और प्लस ए हमने ऐड कर दिया ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारा ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया। तो इसी तरीके से जो है हमने जो है ना कुछ क्वेश्चन में जो ट्रिक यूज कर रहे हैं उन ट्रिक का हमें है ना याद रखना है, ठीक है, वो अगर हमें याद रहेंगी तो हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, ये जब भी कभी ये याद रखो ई टू दी पावर लॉग एक्स होता है ना, तो क्या हो जाता है, सिर्फ एक्स हो जाता है। जैसे फर्स्ट वाली टर्म में क्या दिया हुआ है, ई टू दी पावर 5 लॉग एक्स दिया हुआ है, तो अब 5 को, 5 यहाँ पर है ना, उस 5 को आप यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ पे हटा के हमने यहाँ लिख दिया तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स 5 हो जाएगा, बस। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, यूज किया है पहले, तो वो आप यूज करके इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा एक्स टू दी पावर 5 माइनस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 3 माइनस एक्स टू दी पावर 2। तो इसमें जो भी टर्म हम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो कॉमन आ रही है टर्म एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है एक्स टू दी पावर 4, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स माइनस 1, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया। जब एक्स की पावर 2 हो गया, इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है। तो ये जो टर्म आपको जो मुश्किल लग रहा था, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ई टू दी पावर लॉग एक्स टू दी पावर एन होगा, तो ये लॉग से ई कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसका बेस भी ई होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बस क्योंकि याद रखनी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी मैंने और भी बता दिया आपको। अब इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया 8th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, 9th क्वेश्चन में 4 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन एक्स को अगर हम टी लेट कर लेते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस एक्स अवेलेबल है। इन 9th क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप साइन एक्स को टी लेट करते हैं ना, अगर आप साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंस यहाँ ऊपर अवेलेबल है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा डी टी अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन इनवर्स टी हो गया, टी अपॉन 2। तो टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे, क्योंकि हमने साइन एक्स को टी लेट किया था, तो क्या हो जाएगा, साइन साइन टी साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, साइन साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। बाद में यहाँ पर हमने साइन एक्स को टी लेट किया
साइन एक्स को टी लेट करने पर डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डिफरेंशिएट किया हमने तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो, तो cos x dx की जगह तो dt आ गया, 1/4 स्क्वायर, 4 में क्या लिख दिया, 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स t/2 हो गया, तो साइन इनवर्स साइन x/2 इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन इनवर्स x/a, तो इनवर्स का साइन नहीं लिखा था मैंने, साइन इनवर्स t की जगह हमने क्या पुट कर दिया, साइन x पुट कर दिया, क्योंकि हमने साइन x को t एज्यूम। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, जो सिंपल क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैंने, क्योंकि आप सामने नहीं हो तो पता नहीं चल पाता आप कितना समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसको आप देखो ध्यान से, साइन 8x माइनस कोट 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना, देखने में तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लगी नहीं रही है ना, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वी कैन कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज द आइडेंटिटी व्हिच यू हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम 7th क्लास, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, sin 4x माइनस cos 4x, ठीक है, into sin 4x plus cos 4x divided by 1 minus 2 sin square x cos square x, ठीक है। तो sin 4x plus cos 4x है, इसको भी हम जो है होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, अगर हम इसके अंदर, ठीक है, क्या ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हमने ऐड कर दिया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, माइनस ए किया था एंगल में और प्लस ए कर दिया था, मतलब इक्वल चीज हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते, वही काम हमने क्या किया, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी गेट sin to the power 4x minus cos to the power 4x plus sin to the power 4x plus cos to the power 4x, हमने इससे क्या किया, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स ऐड कर दिया और 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसके करने से हमें क्या फायदा हो रहा है। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिटी द्वारा यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे हमने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। देखो ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये टर्म हमारी सेपरेट है, इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म हमारी एज इट इज लिखी हुई है, ये रूट के अंदर नहीं है बेटा, मैंने रूट में लिख दिया है इसको, ये रूट के अंदर नहीं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये टर्म इस तरीके से लिखी हुई है ना, ये होल टर्म के नीचे डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स,
अब देखो यहाँ पर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। इसकी ये क्या हो गया, इसको हम फार्मूला यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और साइन स्क्वायर एक्स पे कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये देखो कि डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो वी कैन कैंसिल। अब हम इन दोनों टर्म को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया था। कॉमन क्यों लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। इसको हमने होल स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया, देखो हमने इसको होल स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता था और ये दोनों सेम हो जाते हैं। न्यूमरेटर की ये जो टर्म थी जो प्रोडक्ट में लिखी हुई थी और डिनोमिनेटर वाली टर्म दोनों सेम है, इसलिए हमने ये काम किया। तो ये टर्म दोनों टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी टर्म लग रही थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके हमने सिर्फ क्या लिख लिया, माइनस के कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, साइन टू एक्स होता है। तो साइन टू एक्स हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया, बस कितना सिंपल इंटीग्रेशन हुआ। लेकिन इसके अंदर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे किया है। देखो ये तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें देख के समझ जाना चाहिए। जब भी कभी एलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है तो हमें करनी चाहिए। तो ये ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, इस पर कोई दिक्कत ही नहीं था। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद इन्हें हमने कंप्लीट, क्योंकि ये साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x हो रहा था, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता था। और ठीक है, वो काम हमने किया है। ये चीज आपको याना थोड़ी सी याद रखनी होगी। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर को हमने ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया। इसके करने के बाद क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी की 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो गया। और दिस इज एक्जैक्टली सेम टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के सेम है, तो ये पूरी टर्म हमने पूरी, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना, पूरी टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं प्रोडक्ट में लिखी हुई। ऐसा नहीं है कि माइनस वाली टर्म को कैंसिल कर रहे हो, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरी टर्म को हमने कैंसिल किया और ये हमने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, ये cos 2x हो गया, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। इसमें बस ये ही चीज याद रखने की है कि हमने इसको होल स्क्वायर में, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसका, जो होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। बाकी तो आपको खुद से याद रहेगा और कुछ परेशानी नहीं होगी, इसी स्टेप में प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1 अपॉन cos x प्लस ए cos x प्लस b, ये टर्म दी हुई है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो कुछ चीजें ऐसी है इंटीग्रेशन में, बहुत सारी चीजें, कुछ नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी। ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज की। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। जब दोनों तरफ कॉस होगा तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन, ठीक है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिखना। अब देखो ये चीज आपको याद रखनी, ये मैंने आपको शुरू से बताया था, इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में बहुत फर्क है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बहुत कम चीजें हैं जो हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो याद होनी चाहिए, बस आप डायरेक्टली जो रूल है उनको फॉलो करते हुए आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन इंटीग्रेशन जो है ना, जब भी होगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, तो उससे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे
की ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो इसमें जो है हमारे जब भी कभी कॉस है, चार फॉर्म हो सकती है, मैंने जब भी बताया था कि ठीक है, अगर दोनों कॉस में है तो हम ऊपर साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने अपनी तरफ से देखो हमने क्या किया है, इक्वल चीज हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट की है। जो इक्वल चीज अगर हमने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं की है तो हमें उसे इक्वल बनाना होगा। तो कैसे बनाया हमने, देखो एक्स माइनस ए है, माइनस एक्स माइनस बी लिखा है, तो देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि माइनस का ए और प्लस का बी, हमने साइन बी माइनस ए अपनी तरफ से हमने मल्टीप्लाई ले लिया न्यूमरेटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, साइन बी माइनस ए से, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ द टर्म विल बी चेंज। तो इसमें यही ट्रिक यूज करनी है, आपने क्या करना है, 1/sin बी माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू सेम रहनी चाहिए, देखो वैल्यू सेम रहेगी। देखो अब आप माइनस से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या आया, साइन बी माइनस ए आया, और डिनोमिनेटर में भी साइन बी माइनस ए, भी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 होगी। ये ट्रिक आपको याद रखनी होगी, तो इसको बस और कुछ नहीं है, ये याद रखते हुए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos x प्लस ए cos x प्लस बी, ठीक है, dx। अब हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन बी माइनस ए साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला जो आपने 11 से स्टार्ट यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अलग अलग इंटीग्रेट कर, अलग अलग जो है डिवाइड कर लिया दोनों। अलग अलग डिवाइड करने पे क्या होगा, cos x प्लस ए नीचे तो प्लस में आ रहा है, ऊपर माइनस में है, तो इसको आपको यार प्लस में लेना होगा, है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्लस लो, अगर आप प्लस लेते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स तो अभी भी कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप ए माइनस बी से हम डिवाइड कर लेंगे, मैंने ध्यान नहीं किया, ठीक है। तो ये नीचे प्लस में है तो वही प्लस में लेने पड़ेंगे दोनों एंगल, है ना। तो एक्स से तो एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ ए माइनस बी आ रहा है, पहले बी माइनस ए आ रहा था तो ए माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ए माइनस बी से डिवाइड कर, तो आप ए माइनस बी से डिवाइड कर, कोई बात, ए माइनस बी से हमने डिवाइड कर। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने सेपरेटली डिवाइड करेंगे cos x प्लस बी से, इसको भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड कर लिया, cos x प्लस ए cos x प्लस बी। अब इसके बाद देखो आप, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, इसको कैंसिल करने के बाद ये आया 1/sin ए माइनस बी tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/, इसको लिख सकते हो 1/sin ए माइनस बी, log sec x होता है tan x का, तो log sec x प्लस ए माइनस log sec x प्लस बी, दोनों एक साथ भी मिला सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec x प्लस बी, ठीक है। दोनों ही है ना, sec में ना cos में कन्वर्ट करना चाहे तो cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस बी log, इसको जब 1/cos लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस बी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। cos में लिखते हैं तो आपकी इच्छा है, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, log cos x प्लस ए प्लस सी, आइदर यू कैन लीव हेयर और हेयर। इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेशन कंप्लीट किया। तो इसमें हमने क्या ट्रिक यूज की, हमने जो है इसको कैंसिल करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म लाने के लिए जब भी कभी आपके पास क्या होगा, दोनों कॉस होंगे तो साइन में कन्वर्ट करोगे,
साइन और कॉस में होंगे तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या